بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھا ابو جہل کے پاس لے گئے اور کہا، فاطمہ، ابو جہل کو زور سے تھپڑ مارو۔ واقعے کو تفصیلات سے سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی اور سیدہ علی مرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور پاک ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 29 سال تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضور پاک کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا، اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور پاک نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوئے ابو جہل، شرم کرو، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل، جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اسی عالم میں آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھی، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر دوڑی چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رک گئیں۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی،
पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी, कई कई दिन फाके किए, लेकिन कभी आँख में आंसू नहीं आए। लेकिन बेटी बता तो सही, आज तेरे रोने की वजह क्या है? हज़रत फ़ातिमा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया कि अब्बा जान, मैं रास्ते से गुज़र रही थी। रास्ते में अबू जहल आपको गाली दे रहा था। मैंने उसको जवाब दे दिया। फिर अब्बा जान, मेरे गाल पर उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दे कि ये तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ, यानी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में लोगों ने कांटे बिछा दिए थे, लेकिन हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों पर कभी गुस्सा नहीं हुए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊँट की ओझड़ी डाल दी गई, लेकिन हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी गुस्सा नहीं आया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर भी मारे गए, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा भी नहीं आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पानी बंद किया गया, लेकिन आपको उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया गया कि आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन फिर भी आपको उन लोगों पर कभी भी गुस्सा नहीं आया। आपने कभी उन लोगों के लिए बुरा भला नहीं कहा, कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की, लेकिन आज अपनी प्यारी बेटी को, अपने दिल के टुकड़े को इस कदर रोता हुआ देखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया, इतना जलाल आया। आपने अपनी बेटी से कहा कि फ़ातिमा, जाओ अबू सुफियान के घर जाना और उनसे कहना कि तुम्हें अबू जहल ने मारा है। अबू सुफियान से कहना कि वह अबू जहल से कहे कि वह फ़ातिमा से माफ़ी मांगे, वरना मैं आज अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा लूँगा, और कसम खुदा की अगर मैंने अपने हाथों को उठा लिया तो अबू जहल की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, उसका नामो निशान मिट जाएगा। जाओ बेटी, अबू सुफियान से इतना कह देना। सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रोती हुई अबू सुफियान के घर पहुंची। नाजरीन, आपको बता दें कि अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें रचते थे। आपका नाम 10 बड़े दुश्मनों में आता था। जैसे ही छोटी सी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू सुफियान के घर रोती हुई पहुंचती हैं, अबू सुफियान ने जैसे ही आपको रोता हुआ देखा तो आपने अभी कुछ पूछा नहीं था और ना ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको कुछ बताया था कि उससे पहले ही नन्ही सी बच्ची को इस कदर रोता हुआ देखकर अबू सुफियान को बहुत बेचैनी हुई और आपने नन्ही सी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गोद में उठा लिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माथे को चूमते हुए पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ है, क्यों इस कदर रो रही हो। 6 साल की सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोते हुए सारी बातें बताई कि अबू जहल ने उनके गाल पर थप्पड़ मारा है। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा की बात सुनते ही अबू सुफियान को इस कदर गुस्सा आया कि हज़रत फ़ातिमा को अपनी गोद में लिए हुए अबू जहल के घर की तरफ चल दिए और जैसे ही उसके घर पर पहुँचे तो बहुत तेज़ी से गुस्से के साथ दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अबू जहल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अबू सुफियान की आंखें गुस्से से लाल हैं और उनकी गोद में नबी की बेटी फ़ातिमा रो रही है। अबू जहल के होश उड़ गए और वह उससे पहले कुछ बोल पाता कि अबू सुफियान ने अबू जहल से कहा कि अबू जहल, तुम्हें शर्म नहीं आती इस नन्ही सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? ज़रा देख तो सही किस कदर रो रही है। अरे ज़रा अपने आप को देख और इस नन्ही सी बच्ची की तरफ देख। अबू सुफियान बहुत गुस्से में थे और उनका एक गुस्सा देखकर अबू जहल बहुत बुरी तरह काँप रहा था और गर्दन नीचे झुकाए खड़ा था। अबू सुफियान अबू जहल से कह रहे हैं, माना कि हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची को थप्पड़ मारते हुए? क्या तुझे नहीं पता कि दुश्मन की बेटी को भी हम अपनी बेटी की नज़र से देखते हैं? अबू सुफियान बहुत गुस्से के साथ कहते हैं, चल माफ़ी मांग इससे, और हज़रत फ़ातिमा उनकी गोद में होती हैं। उनसे कहते हैं कि बेटी, उसने तेरे गाल पर थप्पड़ मारा है, तू भी उसके गाल पर थप्पड़ मार, अपना बदला ले ले। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, नहीं नहीं, हमारे वालिद ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि माफ़ करना सिखाया है। ये सुनकर अबू सुफियान को और तेज़ गुस्सा आ जाता है और अबू जहल को गुस्से से कहते हैं, ज़रा देख इस बच्ची की तरफ,
सीख कुछ इस बच्ची से, ए चाहती तो दिल भर कर तुझे मार सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि अभी तू कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी ज़रा इसकी तरबियत को देख। ए जालिम, तेरा थप्पड़ खाने के बाद भी ये तुझे माफ़ कर रही है। और फिर अबू सुफियान गुस्से में ही हज़रत फ़ातिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर 2-4 थप्पड़ अबू जहल के मुंह पर लगवा देते हैं, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा बच्ची ही तो हैं। अबू सुफियान के ऐसा करने से उनको हंसी आ जाती है और उनका रोना हंसने में बदल जाता है, जिसे देखकर अबू सुफियान भी हंसने लगते हैं। और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके घर की तरफ छोड़ देते हैं। हज़रत फ़ातिमा हंसती हुई अपने घर के अंदर आती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हज़रत फ़ातिमा को हंसते हुए देखा तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए और आपने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटी, बता तो सही कि तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे है। हज़रत फ़ातिमा बताती हैं कि अबू सुफियान ने अबू जहल को मारा है और उस पर बहुत गुस्सा किया, और पूरा वाक़या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती हैं तो हुज़ूर पाक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान के लिए अल्लाह की बारगाह में अपनी झोली को उठाकर दुआ करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को, जिसने मेरी रोती हुई लाडली को हंसाया है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लाई है। या अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक उसको ईमान की दौलत ना मिल जाए, जब तक वह ईमान ना ले आए उसको मौत ना देना। नाजरीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 बड़े जानी दुश्मनों में हज़रत अबू सुफियान का नाम भी आता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। मेरे दोस्तों, वाक़या आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।